Good morning, my dear students. Have a lovely day. Standard 4th. Myself, Miss Alima Sheikh, your English teacher. So students, as you know, in the previous lecture we had studied chapter number 1, Rain in the Night, and as well as we had completed the notes also, right students? So from today onwards we are going to start with the second chapter. So students, I request to everyone to open your English Bal Bharati textbook as well as remove the pencil also to tick out the hard words. Okay. So students, here page number 2, chapter number 2, Aesop's Fables. Students, what is the meaning of Aesop Fables? Aesop means a wise person. A wise person means the person who is too intelligent, knowledgeable, right? The person who has having so much knowledge, right? It's called Aesop. So here one person name is called Aesop, right students? What is the meaning of fables? Fables means a short story. Fables means what? A short story which gives us moral or message. Students, जैसे कि आप जानते हो हमारा चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, रेन इन द नाइट. उसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया है एज वेल एज उसका नोट्स भी हो गया है, राइट? और हमने आज से शुरुआत किया है चैप्टर नंबर 2, एसॉप्स फेबल्स. स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या है? एसॉप्स फेबल्स का मतलब क्या है? एसॉप्स एक पर्सन है, एक इंसान है, एक आदमी है जिसका नाम है एसॉप्स, और वो बहुत ही वाइज पर्सन है. वाइज मीन्स उनके पास बहुत ज्ञान है, राइट? वो इंटेलिजेंट पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, उसे हम कहते हैं एसॉप्स. और फेबल्स मीन्स एक छोटी सी कहानी जिससे हमें कुछ सीख मिलता है, विच गिव्स अस मॉरल और मैसेज, जो हमें कुछ सिखाती है, राइट? ऐसी छोटी छोटी कहानी जो हमें कुछ सिखाती है. नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट लाइन. Fables are short stories, as I told you. Students, now only I said fables means what? A short story. Fables क्या होता है? Short stories होती है. That have a moral or message for us. Students, now only I said you that fables means what? A short story which gives us message or moral. Right students? Now, something to learn and keeps in mind as we grow up. So from that story, from that short story, we get some knowledge, and that knowledge we keep in our mind till we grown up. जैसे कि स्टूडेंट्स, जो शॉर्ट स्टोरी है उससे हमें क्या मिलता है? मैसेज मिलता है, मॉरल्स मिलता है, राइट? और वो सीख हम बड़े होने तक हमारे पास रखते हैं. So it is called something to learn and keep in mind as we grow up. जब तक हम बड़े नहीं हो जाते तब तक हम वो सीख हमारे दिमाग में रखते हैं कि most of the fables have animal characters who think and act just like a human beings. So students, more stories are based on animals character. Fables means, as I told you, most of the fables means most of the stories based on animals character. जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारी कहानी के जो किरदार है वो एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग, डोंकी, डियर, राइट? एंड मैनी मोर. इफ यू ऑब्जर्व that many more stories are based on animals character and they behave, they think like a human beings. they act like a human beings. अगर आप देखोगे जो एनिमल कैरेक्टर्स है जो कहानी में, छोटी छोटी कहानी में
कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? मोस्टली एनिमल्स के। और वो एनिमल्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो ह्यूमन बींग्स है। जैसे ह्यूमन बींग्स कैसे एक्ट करते हैं, उनकी फीलिंग्स कैसे होती है, सेम वे एनिमल्स भी वैसे ही एक्ट करते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? आई होप everyone understood the first paragraph, right? Now move to the next paragraph. So here, it is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. So students, here, can you see the pic? Yes. In this lesson, this is the wise man. And this wise man name is called as Aesop. If you believe, students, that many of the fables were first told by a wise person and it's called Aesop. Students, अगर आप देखोगे बहुत सारी स्टोरीज जो शॉर्ट स्टोरीज होती है, सबसे पहले वो किसने कहा रहता है? वाइज पर्सन है। वाइज पर्सन मीन्स जिसके पास बहुत सारे नॉलेज है, ज्ञान है, वो पर्सन ने सबसे पहले जो स्टोरीज हुई रहती है वो हमें बताते हैं। कौन बताता है? वाइज पर्सन मीन्स इंटेलिजेंट पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन। उन्होंने हमें बहुत सारी स्टोरीज बताए हैं। जो तो बहुत सारी स्टोरीज किसके ऊपर होती है? एनिमल्स के ऊपर, राइट? और ये हमसे किसने कहा है? एक वाइज पर्सन ने कहा है। और वो वाइज पर्सन का नाम क्या है? एसॉप। अंडरस्टूड एवरीवन स्टूडेंट्स? ओके। Aesop lived hundreds of years ago in a country called Greece. जो Aesop जो पर्सन है वो 100 साल पहले ही कहाँ रहते थे? एक कंट्री था और वो कंट्री का नाम क्या था? ग्रीस। His stories become so popular that people pass them on from generation to generation. स्टूडेंट्स, उनकी स्टोरी इतनी फेमस होती थी, इतनी पॉपुलर होती थी कि जो पीपल है, जो इंसान है, वो हर एक पीढ़ी टू पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन मीन्स क्या? पीढ़ी से पीढ़ी वो कहानी पास करते रहते थे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्योंकि वो स्टोरी, वो कहानी इतनी फेमस थी, इतनी पॉपुलर थी कि हम लोग उसे क्या करते हैं? जनरेशन से जनरेशन पास करते हैं। नाउ many proverbs and saying that we use today's are based on these fables. So students, many proverb means जैसे हम कहते हैं thoughts, right? Many of the thoughts were based on today's. Many of the thoughts and saying that we use today are based on these fables. Got it students? जो कहानी है, कहानी से जो हमें मॉरल मिलता है, सीख मिलता है। प्रोवर्ब्स मीन्स व्हाट? थॉट, जो हमें सोच मिलती है, राइट? कि हमें एग्जाम्पल ट्राई अंटिल यू सक्सेस, राइट? ट्राई बट डोंट क्राई। सो इट्स कॉल्ड अ प्रोवर्ब्स। एक थॉट है जिससे हमें सीख मिलता है, राइट? तो ये जो सीख है, ये जो थॉट्स है, ये कहाँ से हमें मिला है? फेबल्स से। फेबल्स मीन्स क्या? अ स्मॉल स्टोरी। गॉट इट एवरीवन? नाउ here are the two well-known fables. So in this lesson there are two stories. In this lesson how many stories are there? Two stories. Got it students? One is the stag at the pool and the second one is the dog in the manger. So students, today I am going to explain you the very first story, and the other part of this story I am going to explain you afterward. Got it students? So first of all, what is the meaning of Aesop's fables? Everyone understood? Okay. Now let us start with the story. So students, as I told you, in this lesson there are two stories. Means there are two parts. If we say, in the one part there is one story, the stag at the pool, and in the second part we will going to study the second story. In the second part we will study the second story. And what is the story name? The dog in the manger. Got it students? Now students, the topic is the stag at the pool. Students, what is the meaning of stag? Stag means a male deer.
जैसे जेंडर होता है मेल फीमेल, मेल मीन्स आदमी, फीमेल मीन्स औरत, राइट. सो यह स्टैग मीन्स अ मेल डियर. जैसे हम इस पोस्टर को देख के आप क्या कहोगे, कौन सा एनिमल है ये, तो आप कहोगे डियर, राइट. बट यहाँ पर कहा गया है द स्टैग एट द पुल. ये जो डियर है वो पुल के पास है. तो ये डियर को स्टैग क्यों कहा गया है? स्टैग इसीलिए कहा है क्योंकि ये मेल डियर है, इसका जो जेंडर है वो मेल है. गॉट इट स्टूडेंट्स? एवरीवन गॉट इट? ओके. नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टोरी. So students, now the very first line, the stag at the pool. Now, one day a beautiful stag came to a pool of clear water. So students, one day what happened? A stag, a beautiful stag, came to a pool side where the water is totally clear water, means clean water. Got it students? जैसे एक दिन की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टैग, स्टैग मीन्स मेल डियर, एक डियर आया. कहाँ पर आया? पूल के तरफ, जहाँ पर छोटा सा एकदम पूल रहता है ना, पर्टिकुलरली वो पूल के पास वो आया. वो पूल के अंदर का जो पानी है, जो वाटर है, वो इतना क्लीन है कि हम उसमें अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं. नाउ एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर. सो व्हेन द स्टैग bent little bit to drink a water, what did he saw? He saw his own reflection in the water. जब स्टूडेंट्स वो जो स्टैग है वो पुल के पास गया था पानी पीने के लिए, तो जब वो थोड़ा सा बेंड हुआ, बेंड मीन्स अपनी गर्दन उसने झुकाई, he saw his own reflection in the water. उसने वो पानी में क्या देखा? अपना रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई उसने उस पानी के अंदर उसने देखा. He was delighted with what he saw. Students, delighted means extremely pleased. बहुत खुशी. Delighted means he was very happy to see his own reflection. Got it students? He was very happy to see his own reflection. Delighted means very happy. Okay? Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. So students, as you can see in this picture, right, when he bent to drink the water, what did he saw? He saw his own reflection and he was very delighted. Students, जब ये डियर थोड़ा सा बेंड हुआ था पानी पीने के लिए, तो उसने क्या देखा? उसकी खुद की परछाई देखा उसने उस पानी में, क्योंकि पानी कितना था? क्लियर था, फुल क्लीन पानी था. द वाटर वॉज टोटली क्लीन्ड. सो फॉर दैट रीजन ही कैन सी हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर. राइट. इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बजाय पानी पीने के, उसने क्या किया? वो कंटिन्यूसली अपने आप को देख रहा था. ही केप्ट ऑन लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन. वो अपने आप को ही उस पानी में देख रहा था. वाई? बिकॉज ही वॉज वेरी डिलाइटेड. क्यों वो देख रहा था? क्योंकि वो बहुत खुश हो रहा था अपने आप को देख कर. सो नाउ स्टूडेंट्स, द सेकेंड पैराग्राफ. हाउ हैंडसम आई लुक. Now here the stag was thinking by himself only that wow, how handsome I look means कितना खूबसूरत मैं दिखता हूँ. How handsome I look means मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूँ. He said to himself, as I told you, he said to himself that I am looking so handsome. मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूँ, ऐसे उसने अपने आप से कहा. How beautiful are this curving antlers. Now here, how beautiful are these curving antlers means जो उसके ऊपर की जो सींग है, जो वो स्टैग की जो सींग थी वो कितनी खूबसूरत है. ऐसे कौन कह रहा है? स्टैग अपने से खुद से कह रहा है कि मेरी जो एंटलर्स है वो कितनी खूबसूरत है. क्यों? बिकॉज एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, द एंटलर्स मीन्स उसके सींग. अगर आप देखोगे तो किसी कर्व शेप में, right? Curve means, if you observe curve means what? In a half circle, right? Like that it is curved. So the stag was thinking how handsome I look because of my antlers. मैं इतना खूबसूरत क्यों दिख रहा हूँ? मेरे इस सींग के वजह से मैं इतना खूबसूरत दिख रहा
हूँ. Like that, the stag was thinking by himself only. So students, can you see the antlers? Antlers means सिंग. उसकी जो सर के ऊपर जो सिंग है उसे हम कहते हैं antlers. So students, now 2 paragraph I had completed. Now move to the 3rd paragraph. When he moved nearer and saw his legs reflected in the pool. Now what happened? Afterward, while looking his antlers, what the stag has done? Stag has moved little bit more near to the pool. Right? Then what he saw? He saw his legs reflected in the pool. जब उसने अपने एंटलर्स को देखा, सिंग को देखा, तो वो बहुत खुश हुआ. राइट? डिलाइटेड मीन्स हैप्पी. फिर उसने क्या किया, वो और पानी के अंदर जा रहा था, मीन्स अंदर पानी पीने के लिए जा रहा था. तो उसने क्या देखा, उसके खुद के लेग का रिफ्लेक्ट, मीन्स अपने पैर की परछाई देखा उसके बाद इन द पुल. नाउ व्हाट हैपेंड? ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड. ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड मीन्स ही वॉज अनहैप्पी बाय लुकिंग हिज लेग. वो थोड़ा सा उदास हो गया. सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड. डिस्गस्टेड मीन्स निराश होना, अनहैप्पी, उदास. राइट? सो look at my legs. Now what the stag is saying that, look at my legs. मेरे legs को देखो. Yuck. They are so ugly. They are so ugly. शी, मेरे पैर कितने गंदे हैं. ऐसे कौन कह रहा है? डियर खुद से कह रहा है. राइट? All spindly with small feet. All spindly. Students, what is the meaning of spindly? Very long and thin. जो उसके लेग थे वो बहुत लंबे थे और बहुत पतले थे. विथ अ स्मॉल फिट, और जो फिट थे वो भी बहुत छोटी थी. राइट? तो उससे बहुत अपसेट हो गया था, वो बहुत निराश हो गया था कि मेरे एंटलर्स इतने खूबसूरत है, ग्रेसफुल है. राइट? दिखने में कितने खूबसूरत दिख रहे, बट जो मेरे लेग है, लेग मीन्स पैर, वो कितने गंदे हैं. यक. लाइक दैट ही वॉज सेइंग टू हिमसेल्फ ओनली. Why? Because the leg is spindly with a small feet. जो उसके पैर थे वो बहुत लंबे थे और पतले थे, और जो उसकी फिट वो भी बहुत छोटी थी. तो उसके लिए वो बहुत निराश हो गया. How I wish that nature had given me leg worthy of my stately antlers. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि how I wish that nature, कैसे नेचर ने मुझे ये दिया है कि मेरे एंटलर्स इतने खूबसूरत, इतने ब्यूटीफुल है, बट मेरे लेग्स वो कितने गंदे हैं. ऐसे ही कुदरत ने मुझे कैसे बनाया है कि मेरे एंटलर्स इतने खूबसूरत है. स्टैटली मीन्स ग्रैंड, सुपर्ब, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल है. मेरे एंटलर्स मीन्स मेरे सिंग कितने खूबसूरत है, बट मेरे जो पैर है वो वर्दी है, मीन्स कितने गंदे हैं. राइट? तो उस चीज़ से मैं क्या हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ इस कुदरत से. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, एवरीवन टिल हियर? सो स्टूडेंट्स, द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज कंप्लीटेड ऑफ पेज नंबर 2. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो हियर पेज नंबर 3. सो स्टूडेंट्स, now the page number 3, in that the very first paragraph. As he was brooding in his way. As he was brooding. Students, brooding means thinking sadly for a long time in his way. जैसे वो बहुत देर तक सोचता ही रहा. और वो क्या सोच रहा था स्टूडेंट्स? Yes, that my antlers is so graceful and my legs are so ugly. Right? Ugly, worthy my legs are. Like that he was thinking for a long time. वो ऐसे ही सोचते रहा था कि मेरे पैर कितने गंदे हैं और मेरे एंटलर्स कितने खूबसूरत है. Now after that, the stag heard an arrow going swish across the pool. Now what happened? Suddenly he heard, उसने सुना कि एक एरो. स्टूडेंट्स, एरो जब स्पीडली हमारे पास से जाता है तो एक साउंड आता है, swish, like that. Right? The arrow moved speedily with a sound.
दैट साउंड इज कॉल्ड स्विश अक्रॉस द पुल. मीन्स दैट कि एरो जस्ट उसके बाजू से गया बट उसको टच नहीं हुआ, मीन्स उसे नहीं लगा ना. एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स. एट द सेम टाइम मीन्स उसी वक्त जब एरो उसके बाजू से गया तो उसी वक्त उसे सेंट ऑफ हंटर्स. सेंट ऑफ हंटर्स मीन्स उसे हंटर्स लोग की स्मेल आई. सेंट मीन्स स्मेल. हंटर्स मीन्स एज यू नो हु हंट्स द एनिमल्स. हु हंट्स द एनिमल इज कॉल्ड एज हंटर. हंटर का मतलब है शिकारी, राइट. तो उसे स्मेल आया. किसका स्मेल आया? शिकारियों का स्मेल आया. स्टूडेंट्स एज यू नो, so students as you know that the animals have the power of smelling, right? So he picked up the scent of the hunters. Scent means smell. उसे smell आया. किसका smell है? Hunters. Hunters means शिकारी. With a quick turn, so immediately he gave a quick turn. He bounded away. Bounded away means leap speedily. वो कूद कूद कर जस्ट वहाँ से टर्न होकर चला गया. हिज लेग कैरीड हिम स्विफ्टली. स्विफ्टली मीन्स क्विकली इनटू द फॉरेस्ट. उसके जो वो पैर थे वो पैर ही उसे स्पीडली वहाँ से लेकर गई. मीन्स वो कूद कूद कर वहाँ से जस्ट भाग कर चला गया इनटू द फॉरेस्ट. कहाँ चला गया? जंगल में, राइट. द हंटर्स वर hot on his trail, but they were no match for his speed. Students, hot on his trail means just the hunters are going to catch only. That time what happened? The stag ran away very speedily from there. Very speedily the stag ran away. Soon the stag left the hunters far behind. Got it, students? Swiftly means quickly. Got it? He bounded away. Bounded means similarly word for bounded is jump, right? Spring or leap. So the stag leaped fastly and went away into the forest with the help of his leg. Students, उसके leg ही थे, वो stag के leg ही थे जो उसको वहाँ से speedily उसको forest के अंदर लेके चले गए और वो फॉरेस्ट के अंदर जाके वो जस्ट वहाँ पर सेफ हो गया. गॉट इट स्टूडेंट्स? टिल हियर एवरीवन अंडरस्टूड द फर्स्ट पैराग्राफ? ओके. सो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ so that you can understand. Okay, so students, here as he was brooding in his way. Brooding means thinking sadly for a long time. The stag heard an arrow going swish across the pool. Right, students? Swish means arrow moved speedily, very speedily, with the sound of swish. At the same time, he picked up the scent of the hunters. वही समय पे उसको स्मेल आया. किसका स्मेल आया? हंटर्स लोग का स्मेल आया. जब उसके पास से एक एरो गुजरा तो उसको स्मेल आया. किसका स्मेल आया? हंटर्स का, मीन्स शिकारियों का. विथ अ क्विक टर्न ही बॉन्डेड अवे. बॉन्डेड अवे मीन्स लिफ्ट स्पीडली. उसने तुरंत ही वहाँ पर एक क्विक टर्न लिया और वहाँ से वो जंप करते करते भाग गया. हिज लेग कैरीड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट. उसके पैर ही थे जो उसको स्पीडली क्विकली फॉरेस्ट के अंदर लेकर चले गए. किससे? डियर को. राइट, डियर के जो पैर ही थे जिसने उसको हेल्प किया, जो पैर उसके थे जिसको वो अगली समझ रहा था, राइट, वर्दी समझ रहा था, उसी पैर ने उसको फॉरेस्ट के अंदर जस्ट लेकर गए. द हंटर्स वर hot on his trail means they are going to just catch only that stag, but what happened? The stag moved very speedily into the forest, but they were no match for his speed. मीन्स जो हंटर्स थे वो उसे पकड़ ही नहीं पाए. क्यों? क्योंकि जो डियर था वो बहुत ही स्पीडली वो फॉरेस्ट के अंदर चला गया. सून द स्टैग लेफ्ट द हंटर्स फार बिहाइंड. देन द स्टैग रन वेरी स्पीडली इनटू द फॉरेस्ट. उतने ही स्पीड में स्टैग
उस फॉरेस्ट के अंदर चला गया विद द हेल्प ऑफ हिज लेग। उसके हेल्प किसने किया था? उसी के लेग ने, जो वो लेग को वो वर्दी समझ रहा था, अगली समझ रहा था, उसी लेग ने उसको हेल्प किया। राइट स्टूडेंट्स? नाउ so students, everyone understood the first paragraph of page number 3? Okay students? Now students, the remaining part we will continue in the next lecture. Okay students? The homework is, I am going to give you the new words in your combined book that you have to complete. Okay students? Now thank you for watching the video.